ये है हसनैन उर्दू मीडिया। उलमा किराम आपसे रुखसत होंगे, लिहाजा बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने मुशफिक व मेहरबान, जो बहुत ही कदरदान और जिसकी आला शोहरत आला पहचान और हाफिज कुरान कारी कुलहान जनाब हजरत मौलाना हाफिजुल कारी नसीम अख्तर साहब कासमी नाजिम मदरसा इस्लामिया झगरुआ दरभंगा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। इन्हें खौफ क्या हो जमाने से, ये हुसैनी मिजाज रखते हैं। और ये भी कह दो कि बयान इनका मंतिक से सुलझा हुआ है, बयान इनका मंतिक से सुलझा हुआ है, लुगत के बखेरों में उलझा हुआ है। हजरात महतरम, लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज़्ज़ते शौक से बेनसीब। आपके सामने हजरत मौलाना मोहम्मद नसीम अख्तर साहब अल कासमी नाजिम मदरसा इस्लामिया झगरुआ दरभंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا وخيرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، معزز حاضرین اور اسٹیج پر جلوہ فروز ہم لوگوں کی پیر و مرشد रहनुमा व मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातुहुम आलिया
بہتر اور مناسب تھا کہ اب حضرت تشریف لے آئے تو حضرت کی گفتگو ہو جاتی، لیکن ناظم جلسہ نے یہ مجھے آواز دے دیا اور میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا، مناسب نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں چند کلمات کہہ کر کے جلد سے جلد رخصت ہونے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اور آپ کے اور حضرت کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ رہ سکوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا اور ساتھ ہی سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس پڑھ کر سنایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، پروردگار کا فرمان ہے، لوگوں تم امانت کو امانت والے تک پہنچا دو، امانت میں خیانت نہیں کرو۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے امانت کے مفہوم میں تنگی پیدا کر دیا، جبکہ مفسرین کرام نے امانت کے مفہوم میں وسعت کو بیان فرمایا، کشادگی کو بیان فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف وہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھ دیے، کسی نے کسی کے پاس زیور رکھ دیے، کسی نے کسی کے پاس کوئی سامان رکھ دیا، بس وہی امانت ہے۔ نہیں، مفسرین کرام نے امانت کے مفہوم میں وسعت اور کشادگی کو بیان فرمایا۔ علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ پروردگار کا فرمان، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ فرمایا اے لوگوں، تم امانت کو امانت والے تک پہنچا دیا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ پروردگار نے کسی کو گاؤں کا ذمہ دار بنایا، گاؤں اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے کسی کو مسجد کا ذمہ دار بنایا، مسجد اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے کسی کو مدرسے کا ذمہ دار بنایا، مدرسہ اس کے پاس امانت ہے۔ اور پروردگار نے کسی کو صاحب اولاد بنایا تو اولاد اس کے پاس امانت ہے۔ یہ پروردگار نے ہمیں بچے دیے تو یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ خیانت کیا، اگر ہم نے اس کو تعلیم سے تربیت سے آراستہ نہیں کیا، اگر اس کا دینی مزاج نہیں بنایا، اگر اس بچے کے اندر دینی شعور بیدار نہیں کیا تو پروردگار کی یہاں ہم مسئول ہوں گے، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ اپنے گھر کا تو سب ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا سب ذمہ دار ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کی، تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کیا تو پروردگار کی یہاں ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ میرے دوستوں سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص چرواہا ہے، اور اس کی نگرانی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذمہ داری کتنی نبھائی۔ جبکہ کوئی بکری، کوئی جانور کسی کے کھیت اگر چر جاتی ہے، کوئی بکری کھیت چر جاتی ہے تو صاحب کھیت آ کر کے اس بکری سے نہیں پوچھتا ہے بلکہ اس کے نگراں سے سوال کرتا ہے کہ وہ چراگاہ کہاں ہے، اس کی نگرانی کرنے والا کہاں ہے۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے تم کہاں تھے کہ یہ
खेत के अंदर आकर के खेत चर गई। इसी तरीके से सवाल किया जाएगा, तुम कहां थे? ये बेरारवी का शिकार हुआ, इसके अंदर दीनी शऊर पैदा नहीं हुआ, इसके अंदर दीनदारी नहीं आई। तुम कहां थे, क्यों नहीं देख रेख किया? मेरे दोस्तों, ये हमसे सवाल होगा। परवरदिगार का फरमान है, लोगों तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ, अपने अहल अयाल को भी बचाओ। आप अंदाजा लगाइए, अगर हमारे मोहल्ले में कहीं आग जल रही हो, हमारे बच्चे उधर भाग रहे हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे बच्चे को बचाने की। अगर हमारी बात ना सुने और अगर हमारी बात ना माने तो हम दूसरे को बुलाएंगे, तीसरे को आवाज देंगे कि इधर आइए, मेरा बच्चा उधर जा रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये आपके पास जाएगा, झुलस जाएगा, मर जाएगा, जिंदगी तबाह कर लेगा। आप इसे समझाइए, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम दुनियावी आग से बचाने के लिए इतना कर सकते हैं, उग्रवी आग से बचाने की क्या तदबीर कर रहे? उग्रवी आग से बचाने की क्या तदबीर कर रहे हैं? हम कितना सोचते, कितनी फिक्र रखते हैं। परवरदिगार का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को, अपने बाल बच्चों को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अभी आपके सामने मुफ्ती साहब आए थे, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू किया कि बूढ़े होने की आलम में, बीमारी के आलम में भी अपने बच्चों की फिक्र किया, अपने बच्चों की फिक्र ली और अपने बच्चों के ईमान का ख्याल रखा। आखिरी वक्त में भी सवाल किया कि तुम मेरे जाने के बाद किसकी बंदगी करोगे और किसकी इबादत करोगे? क्योंकि ये बच्चे अगर दीनदार हो गए, अगर ये बच्चे अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हो गए, तो ये हमारी पूंजी है। और उन्हीं बच्चे, उन्हीं औलाद के बारे में कहा गया कि जो नेक साले औलाद छोड़ के दुनिया से जाते हैं और जिसका सवाब उनको मिलता रहता है, वो उन्हीं ऐसे ही औलाद के बारे में कि अगर हमने उनको दीनदार बनाया और ईमानी शऊर उसके अंदर पैदा किया, वही औलाद हमारे लिए सरद जारिया बनेगी। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने तवज्जो नहीं दी, यही बच्चे हमारे दावत पकड़ेंगे, यही बच्चे अल्लाह के यहाँ सवाल करेंगे, परवरदिगार के यहाँ सवाल करेगा, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फदल्लूना सबीला। इलाही, ये मेरे बाप है, ये मेरे दादा है, ये मेरे चचा है, ये मेरे पूर्वज है, ये मेरे सरपरस्त है, मुरब्बी है। हमने इनकी बातों को माना, इनके कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारी। काश ये मुझे दीनी तालीम देते, दीनी तालीम से आरास्ता करते, मैं भी दीनदार होता, मैं भी हाजी होता, मैं भी गाजी होता, मैं भी नमाजी होता। लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं दिया, मेरा ख्याल नहीं किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी गाड़ी फंस जाएगी, हमारा दामन उलझ जाएगा, हम नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अभी अपने बच्चों को फिक्र करने की जरूरत है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले आप मकतब में भेज करके उसके अंदर ईमानी तुख्म रेसी कर दीजिए, ईमान का बीज डाल दीजिए, तौहीद का बीज डाल दीजिए, उसके बाद तो जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में भेजिएगा। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, उस तहजीब से, उस महान से वो बच्चा मुतासिर नहीं होगा। इसके ऊपर इस्लामी रंग चढ़ा हुआ है, दीनी रंग चढ़ा
तौहीद का रंग चढ़ा दिया है, इस्लामी रंग चढ़ा दिया है। आज अलमिया ये है, लाखों लाखों हमारे बच्चे इर्तिदाद का शिकार, बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है। गैरों को माहौल बजा करके उनको ये भी पता नहीं है हम मुसलमान, मुसलमान क्या है, मुसलमान का मतलब क्या है, इस्लाम क्या कहता है। इसलिए कि वो उस माहौल में जा करके उस माहौल के रंग में रंग चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को अंदर आप इस्लामी रंग में इसको रंग दीजिए। आज जिस गांव में जाइए, जिस महल्ले में जाइए, मगरिब के बाद जो असल पढ़ने का वक्त है, तालीम का वक्त है, उस चौराहे पर जाइए तो दो चार नौजवान मोबाइल लेकर के मोबाइल बाजी कर रहा है। उस चौक पर जाइए तो वहां भी दो चार नौजवान, उस चौराहे पर जाइए वहां भी दो चार नौजवान। जो मुस्तकबिल की तामीर का वक्त होता है, जो पढ़ने और पढ़ाने का वक्त होता है, उस वक्त हमारे बच्चे उन चौराहों पर मोबाइल बाजी करते हुए नजर आता है। आखिर उसको कौन फिक्र लेगा? कहाँ गए गार्जियन, कहाँ गए उसके सरपरस्त? शाम होते ही परिंदे अपने घोंसले में लौट आते हैं और हमारे बच्चे अगर घर नहीं लौटे उसकी फिक्र कौन करेगा? पहले एक जमाने में अगर कोई बड़े बुजुर्ग किसी के बच्चे को समाचार रसीद कर दिया, कोई बात कह दिया, डांट दिया, तो घर वाले अच्छा समझते, चलो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन आज अगर कोई डांट दे, कोई अगर तमाचा लगा दे, तो बच्चे बाद में बुरा मानेंगे, घर वाले पहले बुरा मानते हैं। आप कौन होते हैं हमारे बच्चे को कुछ कहने वाले? ये हमारा मिजाज है। आज हमारा नौजवान नशे का शिकार हो रहा है। इतने चीजें आजकल इतनी आ गई है, उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, वो बर्बादी के बहाने पे है। समाज के कई लोगों कौन सोचेगा उसके बारे में, कौन फिक्र लेगा? अगर आज नहीं हम जागे तो मेरे दोस्तों हम तो एक बालिश के लड़ने में लगे हुए हैं, झगड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ हमारा वजूद का मसाला है, हमारी वजूद की मिटाने की साजिशें चल रही है। हम एक बारिश में उलझे हुए हैं। इसलिए आज तवज्जो देने की जरूरत है, आज ध्यान देने की जरूरत है कि अपने अपने बच्चों को आप सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए और दीनी रंग में रंग दीजिए। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है कि हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं लफ्ज़ करूँ मुझे मुनासिब नहीं मालूम हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ मौलाना कलीमुद्दीन साहब। अभी मैं बच्चों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह किस बेबाकी के साथ, किस हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने अपना कलाम पेश किया, मुकालमा पेश किया, तकरीरें पेश की। क्या आप अंदाजा लगाते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये बच्चे यूं ही आकर के यहाँ खड़ा होकर के तकरीर कर लिया, मुकालमा पेश कर लिया? नहीं नहीं, इसके पीछे इन असातिज़ाओं की बहुत मेहनतें कार फरमा है, बहुत शबो रोज की मेहनतें इनके पीछे है। इनके अंदर हौसला भरा गया है, इनके अंदर हिम्मत को डाला गया है, तब जाकर के जुड़ाता और बेबाकी के साथ यहाँ खड़ा होकर के अपने पूरे हौसले के साथ जो है गुफ्तगू कर रहा है। वरना यहाँ आकर के खड़ा हो जाना मामूली बात नहीं है, यहाँ आकर के बोल देना मामूली बात नहीं है। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, लेकिन जिन बच्चों ने हौसले के साथ, चुनौती के साथ, बेबाकी के साथ अपना कलाम पेश किया है, यकीनी तौर पर इन असातिज़ा किराम की मेहनतें कार फरमा है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, इसलिए कि हजरत तशरीफ ले आए और हजरत का हुक्म था कि 12 बजे तक ही प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। और मुनासिब भी है कि ज्यादा देर जगा करके बेफायदा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है। ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। और जानते हैं ये बात जमाना सारा एक उस्तादी है जो पत्थर को जुबा देता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।